मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन को बनाने में टारगेट सेट करो। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने 2024 ईयर में छोड़ा था। छोड़ने का रीजन ये था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली एक कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही अच्छे होंगे। वन शॉट वीडियो का टारगेट हमारा ये है कि 2025 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तैयारी करवा दूं। ओके, तो हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तैयारी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी जोर डालेंगे, सारे थ्योरम्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। वेलकम टू अभय एकेडमी चैनल एंड यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। Okay my students, and try to forward to your friends also. Thank you. So chapter 1 real number and the one short video is yours. You have to watch this video carefully and completely. Okay my बच्चों, तो fundamental theorem of arithmetic says that a composite number can be expressed as a product of primes and this decomposition is unique apart from the order in which prime factorization occur. Basically fundamental theorem of arithmetic is the explanation of factorization of any composite number in terms of prime numbers, right? Like you have a number 30, so 30 can be written as 2 into 3 into 5, ठीक है ना? बच्चे में हम लोग क्या कर पढ़ते थे, क्लास 7-8 में हम लोग क्या पढ़ते थे, 30 को फैक्टराइज करना है, तो 30 को फैक्टराइज हम कैसे करते थे, 2 into 3 into 5. We have started with the smallest number and then we proceed to the greater numbers. Okay? लेकिन यहाँ पर आपको क्लास 10th में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये कहना चाहता है कि आप 30 को 2 into 3 into 5 भी लिख सकते हैं, 3 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं, या 5 into 2 into 3 भी लिख सकते हैं, या 5 into 3 into 2 लिख सकते हैं. That means there is no any restriction for the order of numbers, right? So order of numbers could be anything apart from the order in which the prime factorization occurs. Okay. Similarly 45 है तो 45 को you can write 3 into 3 into 5, you can write 3 into 5 into 3, you may write 5 into 3 into 3. Order doesn't matter in order to writing the prime factorization of any number. Okay. So this is the explanation. Now here it is showing the tree diagram. So in tree diagram you may easily see, like suppose that you have number 36. So 36 can be factorized in terms of a tree diagram. So 36, the prime number can be obtained first, which is 2, and then 2 into 18, we know it is 36. Now similarly 18, from 18 we can create a prime number 2 again, and this number is 9, and then 3 and 3. So in this way, what can we see that in the left part we are just writing the prime numbers, prime, 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 and the final number is also prime. So what is 36? 36 is actually written here in terms of 2 into 2 into 3 into 3. So basically what is 2, 2, 3, 3? 2, 2, 3, 3 are the prime numbers. So it is, tree diagram is just a way to find out the prime numbers from a composite number, and after multiplication of these prime numbers you will again get the composite number. Understood? Based on this topic we have some important questions of previous years. Like these are the very important questions that came in the previous years on the basis of फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है. द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750. दैट मीन्स सिंपली यू हैव टू फैक्टराइज 3750. उस 3750 के प्रोडक्ट में 2 का कुछ पावर आएगा, 5 का कुछ पावर आएगा, और भी किसी नंबर का पावर आ सकता है. ठीक है, तो उसमें 5 का जो पावर है वो आपको लिखना रहता है. The exponent of 5 in the prime factorization of 3750. We will do this question after this slide. Okay. In 2020 year, again the question is of 1 mark, which is like the total number of factors of a prime number is. किसी भी prime number के 2 factor होते हैं, एक 1 and the number itself. Okay. We know the definition of prime number, that a number which is divisible by 1 and the number itself. Okay. Where 1, जहाँ पर 1 जो है ना, 1 is not a prime and the number itself will always be a prime.
ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये पूछता है कि द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अगर यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात कर दे, प्राइम फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, देन इट विल बी ओनली वन नंबर एंड दैट नंबर विल बी द नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर प्राइम वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, the total number of factors of a prime number. So suppose that you have a prime number 5. 5 having two factors, 1 and 5, right? The number which is divisible by 1 and the number itself is prime number. So how many total factors present here? 2 factors. But among these 2 factors, one is not a prime, but 5 is a prime. Okay? So there could be 2 questions which can be create here. First question क्या हो सकता है? First question हो सकता है कि the total number of prime factor or factors of a prime number is. तो number of prime factor will be only 1 और वो इस 5 के केस के लिए क्या होगा? ये नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ये क्वेश्चन पूछे द टोटल नंबर ऑफ, इस प्राइम को हटा दें, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, सो इट आंसर विल बी 2। क्यों? क्योंकि एक प्राइम फैक्टर के 2 फैक्टर हैं, सॉरी एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर हैं और वो एक 1 है और दूसरा 5 है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप जब बनाएंगे तो उसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। So the question of 2 marks which came in 2014 year, determine the value of P and Q so that the prime factorization of 2520 is expressible as 2 to the power 3 into 3 to the power P into Q into 7. Okay, we will discuss this question. Again you have to do the prime factorization of 2520 and then you will get the unique factors 2, 3, one more number which will replace the value of Q and 7. ठीक है, तो जो भी वैल्यूज मिलेंगे उसको आपको रिप्लेस कर देना है। यू हैव टू कंपेयर द क्वांटिटीज एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। ओके, नाउ अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2 marks in 2014. शो दैट 9 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 for any natural number n. In these kind of questions it is essential to write the fundamental theorem of arithmetic. Okay, the statement is very important to write. So my dear students, you have to learn the definition or the theorem of fundamental theorem of arithmetic. वो जरूर इससे जरूर आपको याद कर रहना है, since the question is of 2 marks. Okay, so if you will write fundamental theorem of arithmetic, the statement, then by writing statement only you will get 1 mark. Okay, and if you will simply show something which is essential in proving 9 to the power n, then it will be far better. Okay, now this is a very important question which came in the year of 2023 and 24. The question is of 2 marks. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Now the question is of 3 marks which came in the year 2016. Explain whether the number 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 is a prime number or a composite number. So obviously it will be a composite number because one number 23 is common. Okay, so rest number you will get, and again composite number are those numbers having more than 2 factors. So obviously it will have more than 2 factors, so it is well clear for everyone, right? But there are some writing patterns that you have to follow, so keep these things in your mind. Okay, we will discuss everything one by one. So these are the important questions which are related to fundamental theorem of arithmetic. So you can easily see that there are some question of 1 mark, 2 mark and 3 marks. So my dear students, you have to take care of these things. Okay, so let's move to the next. Okay, so now this is my time to solve the problems. So I am solving, and as said previously that you have to sit with pen, paper and copy. So my dear students, you have time also. Look, I am telling you the exam timing, what time you should give in examination hall in order to solve these questions. Okay, this question should not take more than 1 minute. This question should not take more than 10 seconds, and this question should not take more than 1 minute. Okay, if you are finding that your speed is not up to this level, it means that you need much more practice. Okay,
So my dear students, try to solve these questions by your own. If you want to pause the video for some time and try to solve these 3 questions. The 3 questions are here on your screen. Thank you. The exponent of 5 in the prime factorization of 3750. So let's solve 3750. It will be divisible by 2. Okay, one more thing I'm telling you. Would you like to start with 2? Is it the right way to do this? No. Here the question is asking for 5. What will be the exponent of 5? And 5 is a prime number. So it's better not to start with 2, but start with 5, because fundamental theorem of arithmetic says for the order of prime factors. So in order to write 2 first, you can start with 5. Okay? So directly you should start with 5. So let's start with 5, 5, 7, 35, 2, 5, 5, 25, 0. Then again 5, 1, 2, 5, 25, 0. Then again 5, 2, 0, 5 into 6, 7. Now again come to the point. You know 6 is 2 into 3. You know 6 is 2 into 3. So is it necessary to go through this 6? Not at all. What you have to do, you have to find out the power of 5, exponent of 5. And exponent of 5 is 1, 2, 3, 4. That means 3750 can be expressed as 5 to the power 4, 2 into 3. Okay? Right? So what is the answer? Answer will be 4. Okay? So in this part, what I want to tell you, what I want to teach you, I want to teach you that if the question is related to the prime, to the power of 5, you have to focus on the prime number 5. If it is asked to find out the exponent of 2, you must start with 2. If it is asked what is the exponent of 3, you must start with 3. Okay, so that you will get your prime number very easily and very soon. Right, my students? Right. So here I think it is clear. So look, why I am telling you that this is question of 30 seconds or 1 minute, because if you will start your journey with a tricky manner, then only it will be easy to solve the questions in a very effective time. Okay, my bachcho, chalo ab hum log aage badhte hain. Okay, the question is, which is of 1 mark, the total number of factors of a prime number is. देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. दैट मीन्स एक नंबर जैसे 5 एक नंबर हमने लिया, 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ विच इज 5. ओके, अब इसमें जानने वाली बात यह है कि व्हाट इज 1? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 5 इज अ प्राइम नंबर. ओके, so this question can be framed in 2 ways. First way is the total number of factors of a prime number. So total number of factors of a prime number is 2. Okay, but the question can be slightly changed and it can be said as the total number of prime factors of a prime number. So prime factor of a prime number is only 1 and that number is the number itself. Like 5 में के factors 1 और 5 में prime कौन है? Prime 5 है and 1 is neither prime nor composite. इसलिए इस क्वेश्चन को इन 2 तरीकों से समझा जा सकता है और पूछा भी जा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is of 2 marks which came in the year 2014. The question is determine the value of P and Q so that the prime factorization of 2520 is expressible as 2 to the power 3 into 3 to the power P into Q into 7. So what you have to do actually, 2520 factorize it, 2 1 2 6 0, then again 2 6 3 0, 2 3 1 5, then again it will be 3 1 0 5, then again it will be 3 times 5 times, then it will be 5 and then 7. So 2520 can be expressed as 1 2 3 times 2 cube into 1 2 3 square into 5 into 7. Now you have to compare it with the given term which is equivalent to 2 to the power 3, 3 to the power P into Q into 7. So finally you will have the values. You can easily see that here
3 to the power 2 and 3 to the power p, so p is equal to 2, and at the place of 5 you have q, so q is equal to 5, and that is your solution and the answer also. Understood? Take care. So the next question is of 2 marks which came in the year 2023, and the question is, show that 9 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. So it will take time, so I have already solved. So I'm going to tell you that how could you solve this question. Okay, if you will get any kind of difficulty, you may ask in the comment section. If the number 9 to the question is, you have to show that means ultimately you have an information that you have to show that 9 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number. If the number 9 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 2 or 5. Look, if any number is divisible by 2 or 5, then only it will end with digit 0. Okay, that is the prime factorization of 9 to the power n would contain the prime 2 और 5. जैसे कोई चीज़ घर में होता है तो हम लोग समझाते हैं कि देखो बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा, ये करोगे तो वो नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे हम लोग गार्जियन हमारे समझाते हैं. उसी तरीके से इस क्वेश्चन में एक गार्जियन की तरह आपको समझाना है कि ये नहीं है इसलिए ये नहीं मिलेगा. समझ में आ रही है? तो देखिए क्या नहीं और क्या नहीं मिलेगा. Here you have to show that 9 to the power n cannot end with the digit 0. डिजिट 0 से एंड होने का मतलब क्या है? अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, 0 से एंड होने का मतलब क्या है? कोई भी नंबर का 0 से एंड होने का मतलब क्या है? इसको समझिए. Like you take a number 30. 30 is a number which end with the digit 0. डिजिट 0 से एंड होने का मतलब ये है कि इसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, 30 को क्या हम लिख सकते हैं 3 into 10? और क्या 10 के दो फैक्टर्स 2 और 5 हैं? यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, यानी वो 0 से एंड होता है, तो उसके दो फैक्टर्स होंगे ही होंगे. और वो कौन कौन होंगे? 2 और 5. क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से ही क्या मिलेगा? 10. अब बोलेगा सर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और 20 का लास्ट डिजिट 0 है, तो क्या ये नहीं होगा? तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वेयर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic always exists for the prime factorization of a composite number. Okay, that means जो भी यहाँ पे बातें हैं ना वो composite number है, लेकिन इस composite number का prime factorization पे focus करना है. So in order to write 4 into 5, 5 is a prime but 4 is composite, so we can't accept 4. Okay, so what are the least numbers, what are the least prime numbers by which the multiplication would be 10? तो देखो 2 और 5 ही वो लीस्ट नंबर हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा. ठीक है. तो एनी नंबर विच इज एंडिंग विद डिजिट 0 मस्ट हैव 2 फैक्टर्स एंड दैट विल बी 2 and 5. यानी इसका होना जरूरी है, नहीं तो वो कोई भी नंबर हो 0 से एंड नहीं होगा. तो अब देखिए ये मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको समझा दी. अब 9 to the power n हो जाए, 6 to the power n हो जाए, 18 to the power n हो जाए, 11 to the power n हो जाए, n. अब इस पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं. आइए समझते. द नंबर वाज 9 to the power n. ओके, इफ द नंबर is 9 to the power n and we are factorizing this will be 3 into 3 to the power n. Then it can be written as 3 to the power n into 3 to the power n. Now in this situation both the numbers are 3. Okay, so whatever be the value of n, where n belongs to natural number as it is said in the question, so n belongs to natural number. For any n का वैल्यू तुम नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 कुछ भी लोगे, यू कैन टेक एनी नंबर. ठीक है. अब 3 to the power अगर आप 2 रखते हो, so 3 into 3 will be 9. If you are writing 3 to the power
n इज इक्वल टू 3 रखते हो, 3 इंटू 9 27। अगर आप 3 टू द पावर 4 रखते हो देन 3 3 9 27 3 81। Okay, so what are you getting actually? In all these numbers, whatever be the power, whatever be the value of n, it will never end with digit 0. Why? Because there is no any factor related to 2 and 5. 2 5 है ही नहीं। 9 के पास कौन कौन फैक्टर है? 1 है, 3 है और 9 है। इसके अलावा इसके पास ना ही 2 है ना ही 5 है, यानी ये 0 से एंड किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये कैसे समझेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। What the fundamental theorem of arithmetic says? Fundamental theorem of arithmetic says that any composite number can be expressed in the terms of prime numbers where the order doesn't matter, right? So and that factorization is always unique। यानी 9 को जो तुम फैक्टराइज कर रहे हो 3 इंटू 3 में, इसको 3 इंटू 3 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम इसमें 2 और 5 का मिश्रण नहीं कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी तरीके से 2 इंटू 5 नहीं लिख सकते हैं। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस बात की गारंटी लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, 9 को तुम 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो नहीं लिख सकते हो। Okay, so someone is here to take the guarantee of the question and the proof of that part also। जैसे हम कोई भी, जैसे मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो जब मैं कैमरा खरीदने गया तो मैंने कैमरे वाले से पूछा कि अगर मान लीजिए कल ख़राब हो गया तो क्या? तो बोला कि 5 साल की गारंटी है, ठीक है, या 3 साल की वारंटी है। तो कोई भी कंपनी गारंटी या वारंटी लेता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन गारंटी दे रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस बात की गारंटी दे रहा है कि नहीं, 9 इज ऑलवेज 3 इंटू 3, इट विल नेवर गिव एनी काइंड ऑफ पोजिशन फॉर द वैल्यूज ऑफ 2 and 5 फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ 9। ठीक है ना। तो ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये सारी बातें कह रहा है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। So on the basis of the given statement, okay, now we are going to prove that how we can say that 9 to the power n cannot end with the digit 0. The number 9 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 2 or 5. Okay, now that is the prime factorization of 9 to the power n would contain the primes 2 or 5. Okay, it is well said. But 9 to the power n is equal to 3 into 3 to the power n, which is 3 to the power n into 3 to the power n, so that the primes in factorization of 9 to the power n is only 3. What we have observed here, that 9 is 3 into 3. That means which prime factorization, which prime number is involved in the factorization of 9? That is only 3, right? So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees what? Guarantees that there are no other prime except 3 in the prime factorization of 9 to the power n. कौन गारंटी ले रहा है? आपकी कौन गारंटी ले रहा है? आपकी गारंटी आपके स्कूल के टीचर्स ले रहे हैं, आपके माता पिता ले रहे हैं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन की गारंटी कौन ले रहा है? इस क्वेश्चन की गारंटी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लेता है, और वो कहता है कि हाँ मैं इसके यूनिकनेस के लिए जिम्मेवार हूँ। यूनिकनेस के लिए जिम्मेदार हूँ कहने का मतलब 9 इज only expressed as 3 into 3. There is no any existence of 2, there is no existence of 5 or 10. Okay, यानी 3 का ही सिर्फ एग्जिस्टेंस है, और ये कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक छाती ठोक के कहता है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 9 to the power n ends with the digit 0। ठीक है ना। तो हु इज टेकिंग गारंटी? यू आर नॉट टेकिंग गारंटी। Mathematics is also not taking guarantee. Fundamental theorem of arithmetic, which is the part of mathematics, is taking guarantee that yes, 9 to the power n having only a prime factor which is 3
it has neither 2 nor 5, so it will not end with the digit 0. ओके, सो बच्चे अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, इस बात को फील कर लेते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and the weightage of marking scheme in this way, you will have get this much marks. यहाँ तक आपको आधा मार्क मिलेगा, फिर यहाँ आपको आधा मार्क मिलेगा, इसको लिखने में आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें 2 मार्क्स की स्कीम सेट होती है। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं लिखते हैं तो बस आपकी गारंटी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि मैं उषा का फ़ैन लेने जाऊं और दुकानदार बोले कि मैं गारंटी लेता हूं, आइएगा। ठीक है, और जब आप जाइएगा आपका कुछ ख़राब हो जाएगा तो बोलेगा मैं तो था ही नहीं, फिर आपका गारंटी का तो धज्जिया उड़ गया। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए आप गारंटी नहीं ले रहे हैं। कौन गारंटी ले रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी ले रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स विच केम इन द ईयर 2016, और भी बहुत बार आया है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है आपके लिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 इज अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो समझ लो। द टारगेट इज फॉर कॉम्पोजिट नंबर इज टू शो दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो, ऐसा क्वेश्चन ना हमेशा कॉम्पोजिट नंबर ही होता है, तय बात है। ठीक है ना, अगर कुछ लिख करके यहाँ प्लस किया हुआ है तो समझ जाइए प्लस किया हुआ है या माइनस किया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 99% चांस है कि वो नंबर कॉम्पोजिट ही होगा। तो कॉम्पोजिट होता क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉम्पोजिट नंबर, दैट मीन्स इट विल हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट? सो द टारगेट इज टू एक्सप्रेस number of factors and that should be greater than or equal to 3. So this question will be solved in this way. We have 3 into 5 into 13 into 46 plus 23, which can be written as 23 is common, then 3 into 5 into 13 into 2 plus 1. Solve this one. So 23 into 3 5 15, 15 to 30, 33 39, 390 plus 1, it should be in bracket, then 23 into 391. Okay, now अब यहाँ पर क्या होता है, 2 तरह के बंदे हैं। एक बंदा सोचता है कि 23 into 391 आ गया है, 391 को चलो फैक्टराइज करते हैं। वो 391 के फैक्टराइजेशन में दिमाग लगाएगा और इसको फैक्टराइज करेगा। अब चेक करेगा 2 से कट रहा है नहीं, 3 से 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 2 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 5 से 35 4 1। अब देखो इस तरीके से कि ये क्या हो रहा है, दिस इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। Why are you doing this? Because you don't understand the meaning of composite number. You don't have target to achieve the final solution of this kind of question. मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन को बनाने में टारगेट सेट करो। टारगेट क्या होना चाहिए कि तुम्हें ये पता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर होने वाला है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा वो देखिए। द नंबर इज 23 and 391। अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, इसको छोड़ करके मैं एक नंबर देता हूं आपको 2 into 3। चलो 3 को भी हटा दो, 2 into 30 ले लो। ठीक है, 2 into 30 क्या ये एक प्राइम नंबर है? सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 30 या कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, ये अगर कॉम्पोजिट है तो ये प्राइम तो हुआ नहीं। 30 अगर कॉम्पोजिट है तो पूरा का पूरा नंबर प्राइम तो हुआ नहीं, यानी कि पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया? कॉम्पोजिट हो गया। चलिए अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं और मैं आपको एक सोच लेता हूं 2 into 3। 2 इज प्राइम, 3 इज ऑल्सो प्राइम। इज इट अ प्राइम नंबर? द होल इज अ प्राइम नंबर और नॉट? 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड 2 into 3 is composite।
पॉइंट कॉम्पोजिट ही नहीं है, पॉइंट ये है कि 2 इंटू 3 क्या है, 6 है। तो टोटल व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन 2 इंटू 3? 2 इंटू 3 का फैक्टर 2, 2 इंटू 3 का फैक्टर 3, 2 इंटू 3 का फैक्टर 2 इंटू 3 खुद, यानी 3 फैक्टर आ गया ना, कम से कम 3 फैक्टर आपको दिखाना था। 3 फैक्टर्स इज ऑलरेडी विजिबल, क्लियरली विजिबल, सो व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू राइट मोर फैक्टर्स? देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए समझिए बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इस बात को आप समझेंगे तो एग्जाम में टाइम बचाएंगे, अगर बात नहीं समझेंगे तो एग्जाम में टाइम बर्बाद करके आएंगे। देखिए 23 इंटू 391 में 23, आपको 391 पता नहीं चल रहा है क्योंकि 7 तक हम पहुंच गए, 8 पहुंच जाएंगे, हो सकता है कोई टेबल उसको डिवाइड कर दे, हो सकता है कि 391 एक प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। 23 इंटू 391 में समझेंगे बात, 23 इंटू 391 को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला फैक्टर है 23 खुद, दूसरा है 391 और तीसरा कौन है? तीसरा 23 इंटू 391 खुद है, पूरा का पूरा नंबर पूरे के पूरे को डिवाइड कर सकता है, पूरा नंबर पूरे को डिवाइड कर सकता है। तो क्या ही जरूरत है कि मैं 391 के ऊपर दिमाग लगाऊं? कोई जरूरत नहीं। सो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली शो हियर दैट सिंस 23 into 391 having 3 factors, कौन कौन? 23, 391 and 23 into 391, ठीक है। Therefore given number, what is the given number? 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 has more than 2 factors. Therefore, it is a composite number. Simple. Composite number. That's it. क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर आप किसी भी तरीके से 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाने की काबिलियत रखते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 391 पे दिमाग लगाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। तो देखिए आप कहते हैं ना, अरे 391 आ गया था, हमको उसको चेक करने में ही मेरा 5 मिनट चला गया। बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे तो 5 मिनट क्या 10 मिनट चला जाएगा। तो आपको बनना है स्मार्ट। एआई की दुनिया आ गई है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने से आप स्मार्ट नहीं बन जाएंगे, आपके ब्रेन को भी स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क टारगेट सेट किए बिना नहीं होता है। सो ऑलवेज माय फ्रेंड्स, ट्राई टू सेट द टारगेट इन एवरी क्वेश्चन सो दैट यू विल गेट very effective solution. Okay, so let's move to the next. तो our next topic is problem related to HCF LCM। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रिलेटेड जितने भी रिवीजन थे वो हो चुकी है। अब आपको करना ये है कि यू हैव टू टेक द NCERT एग्जाम्पलर फॉर अ वेरी इफेक्टिव रिवीजन, है ना। अगर आप NCERT एग्जाम्पलर्स बनाते हो तो वो बहुत अच्छा किताब है आपके लिए। NCERT CBSE का आपने बुक तो बना ही लिया है, अब एग्जाम्पलर बनाओ, ठीक है। तो मेरे इस क्लास के बाद आप NCERT एग्जाम्पलर अगर बनाते हैं या फिर किसी भी सैम्पल पेपर को भी बनाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन NCERT एग्जाम्पलर से देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ते हैं, ठीक है, तो बेहतर है कि आप उसको बनाएं। चलिए अब हमें समझना है प्रॉब्लम रिलेटेड टू HCF एंड LCM। द कॉन्सेप्ट इज HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B. These are some questions which are MCQ questions जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। इसका लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर आपका 4 हो जाता है, लीस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाता है एंड द रेशियो विल बी 1:2। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes. Okay, HCF और LCM के कॉन्सेप्ट लगेंगे। 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes, 30
minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they again beep for the first time? तो इसको भी आप बना सकते हैं. Okay, the question of 1 mark in 2021, the LCM of two numbers is 2400, which of the following cannot be their HCF. ये बताना है कि इसमें से कौन HCF इसका नहीं होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना करके देखिएगा. Okay, I'm giving you the time limit for the above questions so that you can try after pausing the video. Okay, so this will not take more than 10 seconds, okay, which is 1 minute, not more than that. ओके, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है, तो इसके लिए मैं आपको 90 सेकेंड्स दे देता हूँ. 90 सेकेंड्स में आप इजीली बना सकते हैं. इस क्वेश्चन को भी बनाने में आपको 30 to 45 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है, अगर आप इस स्पीड में क्वेश्चन बना पाते हैं, दैट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट्स नाउ एंड यू आर रेडी फॉर बोर्ड. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. कुछ और क्वेश्चंस हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपको मन है तो आप इन क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए और फटाफट अपने चीज़ों को रिवीजन करना शुरू करिए, क्योंकि आपके लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए देखिए. सो द क्वेश्चन इज ऑफ 1 mark which came in the year 2020 and the question is the HCF and LCM of 12, 21 and 15 respectively are. आपको क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है. अभी हम लोग अगले क्लास में समझेंगे. 2023 के क्वेश्चन है 2 marks का. 2 numbers are in the ratio 2:3 and the LCM is 180. What is the HCF of these numbers? Okay, ये भी क्वेश्चन हो गया. 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. Okay, now the next question of 3 marks in 2018. Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF and LCM is equal to product of these two given numbers. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन 3 marks आ जाएगा और बहुत ही इजीली आप इसको बना भी लेंगे. ठीक है ना. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. चलिए आपको टाइम फ्रेम दे दूं फटाफट. दिस क्वेश्चन अगेन 1 minute, नॉट मोर देन दैट. इस क्वेश्चन को आपको बनाने में भी कम से कम 2 मिनट लग जाना चाहिए. ये एग्ज़ाम हॉल में, इस एग्ज़ाम हॉल में आप इस स्पीड में क्वेश्चन बनाएंगे. ये थोड़ा सा आपको सोचने समझने में कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, इसलिए इसको भी 2 to 3 मिनट्स दे सकते हैं आप इसके लिए. ठीक है, इसको आपको 3 to 4 मिनट्स भी लग सकता है. अच्छे से लिखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर फास्ट लिखते हैं तो 3 मिनट इज़ सफिशिएंट. ठीक है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड दे करके, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए मैं ये टाइम लिमिट दे रहा हूँ. हालांकि अगर एज अ टीचर मैं इसे बनाऊँ तो मैं ये सारे क्वेश्चन 3 मिनट में बना दूँगा. ठीक है, तो दैट्स इज़ योर स्पीड. चाहे तो आप उस स्पीड में बना सकते हैं और बच्चे बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं. चलिए देखिए. आई थिंक यू हैव डन. इफ़ यू हैव नॉट डन देन यू शुड डू इट बिकॉज प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर. 12 को पहले फैक्टराइज कर दीजिए. 2 into 2 into 3. 21 is 3 into 7 and then 15 is 3 into 5. Okay, so LCM, first of all we are finding HCF here. So highest common factor is 2 to 3, 3, 7, nothing. So HCF of 12, 21 and 15 is, है ना, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 आएगा. 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए 1 होगा. ओके, अब LCM की बात कर लें तो LCM में क्या हो जाएगा. LCM में हो जाएगा आपका 2 square into 3 into 7 into 5. तो इट विल बी 2 to 4, 3 to 12, 12 5 60, 6 7 420, 420. राइट, तो LCM कितना आ गया, 420 आ गया. ओके, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि सर आप कैसे निकाले, आपको याद था क्या? नहीं, मैंने दिमाग यूज़ किया. कोई भी चीज़ याद करना ज़रूरी होता है मैथ्स में, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. देखिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि 24 और 36 का LCM निकालिए, आप क्या करेंगे? आपका हिसाब किताब कैसे बैठने वाला है? यू विल डू लाइक दिस, 24, 36 और फिर ये काम आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ. लेकिन
एक क्वेश्चन बोलता है वेर यू हैव टू फाइंड आउट LCM एंड HCF बोथ, तो आई विल वर्क फॉर HCF एंड उसी HCF से मैं LCM भी निकाल दूंगा। कैसे, देखिए मैं HCF, आई एम डूइंग द वर्क फॉर HCF राइट हियर नाउ। So 24 can be written as 2, 12, 2, 6, 2, 3 and 36 is 2, 18, 2, 9, 3, 3. Now what is HCF? HCF will be 2, 2, 3. 2 into 2 into 3, 2, 2, 4, 3, 12. ये हो गया हमारा HCF। अब मैं LCM के लिए क्या करूँगा वो देखिए। मैं LCM के लिए, LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ LCM व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द हाईएस्ट power of each prime factor. So highest power of each prime factor, here it will be 2 cube into 3 and here it is 2 square into 3 square. So which is among these two, which is the highest power of 2? This is 2 cube. So first will be 2 cube and second is 3, 2 square, 3 square, 3 square. So it will be 3 square. Now multiplying these two, 2 to the 4, 8 and 8, 6, 8, 9 ja 72. Okay. So this 72 will be the LCM, right? Okay. Moving to the next question that we have is two numbers are in the ratio 2:3 and the LCM is 180. What is the HCF of these numbers? तो ये question directly आपका इस पर आधारित है। HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। कैसे डिपेंडेंट है समझ लेते हैं। देखिए नंबर्स जो है ना वो रेशियो में दिए हुए हैं। लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x। अच्छा 2x और 3x में HCF क्या है बताइए, फटाफट आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। 2x और 3x का HCF क्या है? तो HCF, since HCF of 2x and 3x is x because x is common to both. Okay, ठीक है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं इस पर। So let it be equation number 1 and equation number 1 implies HCF of A and B which is 2x and 3x, तो x हो गया, into LCM is given 180 and the two numbers are 2x and 3x। क्लियर है बात? अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। So it will be 180x and this is 2 into 3 6x square। We can calculate this x and x will cancel, so 6x equal to 180, so x is equal to 180 by 6 is 30। What is x? is 30। क्या निकालना है? What is the HCF of these numbers? तो HCF क्या था? HCF x था, so x का वैल्यू 30 आ गया। Therefore required HCF is 30 answer। Okay, any doubt? No doubt। So pause the video and note it down। जब इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, the question is find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two given numbers। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है, 2025 में भी आ सकता है। तो चलिए फटाफट करेंगे हम लोग। विल फैक्टराइजिंग 96 एंड 404। 96 404 को फैक्टराइज करना है। इट विल बी 2 202 देन सॉरी नॉट लाइक दिस, 202 को मन में रखिए, देन अगेन 2 into 101 एंड देन 96 को फैक्टराइज करें। 2 into 96 का याद नहीं आ रहा हो तो ऐसे फटाफट करो। 2 4 8 16 2 24 2 12 2 6 2 3। अब देखो, क्या आप क्लास 8 पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर, तभी तो 10th में है। तो क्लास 8 में आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स और you are allowed to write prime factorization in exponential form also। तो आपको थोड़ा सा अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप इसे लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 3 4 5 2 to the power 5 into 3। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप LCM और HCF बहुत ही ईजिली लिख देंगे बिना टाइम वेस्ट किए।
तो आपका HCF क्या होगा मेरे दोस्तों? HCF हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 स्क्वायर इज कॉमन, 2 स्क्वायर 4, ये हो गया HCF। LCM अभी हमने क्या बताया? हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर। हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर इज 2 to the power 5 इजीली विजिबल। ठीक है, प्राइम नंबर एक 3 है तो 3 भी लेंगे, प्राइम नंबर एक 101 है तो वो भी लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 9696। ओके, सो LCM विल बी 9696। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस। सो देखो ये बनाया ना, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स, इतना करेंगे तो, ठीक है ना। इस या एक नंबर भी मिल सकता है। HCF निकालने पर आधा नंबर, LCM निकालने पर आधा नंबर, एक नंबर हो गया। डिपेंड करता है, 1.5 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है। 404 का फैक्टराइजेशन करोगे आधा नंबर, 96 का करोगे आधा नंबर, HCF निकालोगे आधा नंबर, LCM निकालोगे आधा नंबर, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या ज़्यादा सोचा हुआ है, कैसे कैसे वो सोच रहा है, क्या क्या सोच रहा है, ये डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपको इतना लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या कम से कम 1.5 नंबर, मतलब 1.5 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब वेरिफिकेशन करना है तो फटाफट लिखिए यहाँ वेरीफाइंग। थोड़ा लिखना उठना सीखिए, शॉर्टकट लीजिएगा तो पता चलेगा IIT निकल गया और 10th में फेल हो गए, मतलब 12th में फेल हो गए, तो वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। सो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। HCF कितना है? HCF इज 4 एंड दिस इज LCM इज 9696। मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24, 2 4 9 36, 37 38, 3 24 25 7 2 36 37 38। This is 38,784. Now the right hand side, which is product of 2 numbers, so write here product of 2 numbers. Okay, आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे LHS लिख दीजिए, LHS equal to something. Okay, and here this is RHS equal to something. तो product of 2 numbers में आपका क्या हो जाएगा? 2 numbers है आपका 404 and second number is 96 and the product will be 38,784. So in this way you will have left hand side is equal to right hand side and hence it is verified. That's it. इतना करेंगे आपको कितना मिलेगा? 3 out of 3. Pause the video and note it down. So the next question that we have is the ratio of the least composite number and the least prime number is it's very easy. Least composite number is 4 and the least prime number is 2, right? So the first is the number 4 and the second is 2, so the ratio is 4 is to 2, which is 2 is to 1. That is the answer, no doubt. What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in the exact number of minutes? ठीक है, अब देखिए ये आपका एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM शुरू होने जाने जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1 शॉट वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सभी डिस्कस करता हूं, सो दिस 1 शॉट वीडियो आई एम डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, ओके, जहां पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इजीली आपको मार्क्स देने वाले होंगे, वैसे जो वीडियोस हैं वो इस वीडियो में है, और इसके बाद जो 1 शॉट वीडियो का पार्ट 2 मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि आप भी वीडियो देखने से बोर हो जाते हैं, स्किप करने लगते हैं, तो बेहतर है कि कॉन्क्रीट चीज़ों को ही मैं बताऊं। तो आपको मैं क्या क्या बताऊंगा अगले वीडियो में वो मैं बता दूं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यू, ओके, ऐसा नहीं है कि भी स्किप करके छोड़ दोगे, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है प्रूविंग इरैशनल नंबर्स, ओके। देखिए क्वेश्चन पे फटाफट फोकस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 3 मार्क्स and this came in 2023 year. The question is prove that root 5 is an irrational number.
मैक्सिमम चांस है कि 2025 में रूट 5 ही आएगा, इसलिए इसको जरूर बनाइएगा। 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, प्रूव दैट √2 + √3 होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने 2024 ईयर में छोड़ा था। छोड़ने का रीज़न ये था कि क्वेश्चन √2 √3 के टर्म में है और यहाँ √6 दे दिया है, तो बच्चा सोचा कि अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन बच्चे ने टारगेट सेट नहीं किया और इसी वजह से उसने क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को आज बताऊंगा कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, 2019, 23, 24 में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। असर्शन रीजनिंग में बनाया हुआ है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा असर्शन रीजनिंग में क्या होता है, कैसे होता है, पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से समझाना है। तो बच्चों केस स्टडी बेस्ड को भी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। चलिए, हमारा अभी टॉपिक था हाउ कैन वी प्रूव दैट √2 + √3 होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें काम कैसे करना है, उस काम पे हम फोकस करेंगे। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √2 + √3 होल स्क्वायर इज रैशनल। फटाफट समझेंगे क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और देखिए कि कैसे इसको अच्छे से समझ के बनाना रहता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट वे भी बताया गया है कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज √2 + √3 होल स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर co-primes and q is not equal to 0। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि what we have assumed that it is rational। रैशनल अज्यूम किया, इसका मतलब क्या है कि ये p/q के फॉर्म में है और हमारा एजम्पशन कहाँ तक है, हमारा एजम्पशन यहाँ तक है कि p एंड q क्या है, को प्राइम्स हैं। p और q को प्राइम होना चाहिए। ठीक है ना, को प्राइम होना चाहिए। अब हमें स्क्वायर है तो वी विल टेक द स्क्वायरिंग। सो लेट्स टेक √² + √3² + 2 √2 √3 इज इक्वल टू p/q। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 2 + 3 + 2 √6 इक्वल टू p/q एंड फाइनली इट इज़ 5 + 2 √6 इज इक्वल टू p/q। देखो बच्चा क्या सोचता है, √6 कहाँ से आया। देखो √6 इज इर्रेशनल। क्या इसमें √6 दिख रहा है, ये √6 दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में √2 + √3² पे फोकस नहीं है। फोकस किस पर है, फोकस इस एक्सप्रेशन पर है। अब इस क्वेश्चन के बदले ये भी दे सकता था, प्रूव दैट 5 + 2 √6 इज इर्रेशनल वेयर √6 इज इर्रेशनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना एडवांस स्टेप आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। अगर वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ इट विल बी implies 2 √6 is equal to p/q - 5 which can be written as p - 5q/5 q by q। then it will be now √6 is equal to p - 5q/2q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रही थी बात, √6 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, सिंस p q 5 2, ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, और इस इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, द राइट हैंड साइड हैविंग p q 5 and 2, दीज आर द इंटीजर्स इन्वॉल्व। जहां पर p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम होता क्या है, को प्राइम इंटीजर होता है, को प्राइम इंटीजर ही होता है, यानी p q 5 2 आर इंटीजर्स। अब तुम इंटीजर्स में कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लगाओगे, कुछ भी करोगे, देन यू विल ऑलवेज गेट द रैशनल नंबर। इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज p - 5q/2q इज रैशनल, But we know that
but we have root 6 an irrational number, an irrational number. अब देखिए what is the contradiction here? p minus 5q by 2q एक रैशनल नंबर है, जबकि ये दिया हुआ है कि रूट सिक्स एक इर्रेशनल नंबर है। यानी हमने लिखा हुआ क्या है, एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वल दिखा दिया है, अल्टीमेटली आया है वैसे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हम भैया इर्रेशनल हैं और हम भैया रैशनल हैं और हम दोनों इक्वल हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। देयरफॉर इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। और ये ऐसा क्यों हुआ? देयरफॉर this is a contradiction. This is a contradiction, and this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Assumption that root 2 plus root 3 whole square is rational. Hence, root 2 plus root 3 whole square is an irrational number. And this is the proof. Right, बच्चों? I think you have understood what I want to say here. Okay, so in these kind of questions, here you have to show that irrational number is not equal to rational number. But here you are saying in equation number 1, what are you saying? In equation number 1 you are saying that root 6 is equal to, तो equation 1 क्या कर रहा है, contradiction दिखा रहा है कि हम irrational हैं और हम rational हैं, तो हम दोनों तो कभी equal हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब equal नहीं हो सकते हैं तो इसको हम रैशनल नहीं बोल सकते हैं, और रैशनल नहीं बोल सकते हैं तो ये रैशनल हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था, हमारा सोचने का नज़रिया ही गलत था और ये गलत हो गया, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। आई थिंक बच्चे आप समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। In the next video, what are the points that I am going to discuss in this chapter only? First of all, application based questions on LCM and HCF, ठीक है। कैसे आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन LCM का है, कैसे आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन HCF का है, यही समझ नहीं आती है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए उसका एक अच्छी स्टोरी मैं क्रिएट करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, ओके। The second point is related to assertion and reasoning, ठीक है। assertion and reasoning में बच्चों को समझ नहीं आता है कि assertion क्या है, reason क्या है और ये ऐसा क्वेश्चन क्यों देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1920 मतलब बच्चा माइंडसेट के साथ ही एंटर करता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो मैं आपका माइंडसेट बदल दूंगा और आपको assertion reason के वो सारे टिप्स दूंगा जिससे आप सबसे पहले 1920 क्वेश्चन को ही बनाना पसंद करेंगे, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड ये वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।